کہ یہ لوگ جب حرم پاک جائیں گے تو دیکھیے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو وہ سلوک ہم نے دیکھ لیا اور بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. تو میری تو استدعا ہے کہ یہ نفرت اور تعصب کی سیاست جو ہے اس کو پاکستان کی سرحدوں کے اندر رکھے. اور ہم نے یہ بھی کل دیکھا کہ جو ہمارے دو کولیگ وزراء ہیں جن کے اوپر یہ حملہ ہوا زبان سے بھی اور فزیکلی بھی، تو انہوں نے درست طور پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بطور رحمت للعالمین اس کا پاس رکھا، کیونکہ ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے پتھر کھا کر بھی لہو لہان ہو کر بھی دعا دی تھی. تو ہم نے اس زبان میں جواب نہیں دیا، اس پیرائے میں جواب نہیں دیا جس قسم کا حملہ ہم پر ہوا. اور ہم سعودی اتھارٹیز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقتی اور فوری ایکشن لیا، جس کے نتیجے میں اب ہمیں یہ توقع ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں جی مین جو ہمارے سامنے آج کا سبجیکٹ ہے. پورے ملک میں اس وقت بجلی کا بحران ہے اور جس کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ملک کے طول و عرض میں. لوڈ شیڈنگ کی دو واضح اور صاف وجوہات ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. مجھے ایک اور بھی شاید اعزاز حاصل ہوا ہے کہ غالباً میں پہلا الیکٹریکل انجینئر ہوں جسے موقع ملا ہے اس وزارت بجلی کی ذمہ داری سنبھالنے کا. تو میں کچھ ٹیکنیکل گفتگو کروں گا، آپ کی کوشش کریں گے کہ اس کو مختصر رکھ کر بات کی جائے. تو پاکستان میں اس وقت جو بجلی کی کمی ہے جس کی وجہ سے پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بعض جو ہمارے دیہی علاقے ہیں ان میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور اس کی دو وجوہات. لیٹسٹ نمبرز جو میرے پاس موجود ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے، ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث 5739 میگا واٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی ہے. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایندھن کی عدم دستیابی کے باعث لیک آف فیول، جس میں RLNG سب سے زیادہ اس میں شامل ہے، لیکن اس کے بعد فرنس آئل کی عدم دستیابی ہے اور کوئلے کی عدم دستیابی ہے، جس کی وجہ سے 5739 میگا واٹ بجلی کی صلاحیت جو بجلی بن سکتی آج ابھی اگر ہمارے پاس فوری طور پر ایندھن دستیاب ہو جائے تو یہ بجلی بن سکتی ہے، یہ نہیں اس وقت بن رہا. اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جو کچھ پلانٹس ہمارے تھے وہ ان کی غلط اور نااہل مینجمنٹ کی وجہ سے پچھلی حکومت میں ان کو یہ دن دیے گئے کہ وہ اپنی مینٹیننس کر لیں. تو مینٹیننس کی وجہ سے، اور ابھی ریسنٹلی کچھ اور اس میں اضافہ ہوا ہے، ٹیکنیکل فالٹس ہوئی ہیں، 2156 میگا واٹس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے مہیا نہیں ہے. اگر یہ دونوں چیزیں جس کے لیے ہم پوری محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، جہاں ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے ہم نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں عوام کی سہولت کے لیے وہاں ٹیمیں بن گئی ہیں اس کو واچ کرنے کے لیے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہاں آنے والے جو عید کے دن ہیں ان میں جو مزید حالات خراب نہ ہوں،
टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से। तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में हमने जो वहाँ हमारे कारकुन हैं, साथी हैं, उनकी ईद की छुट्टियाँ भी हमने मनसूख की हैं। तो ये जो अब हमारे सामने मामला दरपेश है, इसको हम जो हल करने जा रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि 1 मई से मामलात को हम कंट्रोल में लाएंगे। तो हमें ये बहुत उम्मीद है कि कुछ हमें RLNG हुकूमत की जानिब से परसों यानी 1 तारीख से मिलना शुरू होगी, उससे हालात बेहतर होंगे। कुछ हम फर्नेस ऑयल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 तारीख से, वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। और फिर या उससे आगे जो चंद दिन हैं उनमें मज़ीद हमें गैस की एलोकेशन गवर्नमेंट से मुतवक्को है। तो इस लोड शेडिंग में अगले 10 दिन में बहुत हद तक हमें ये तवक्को है कि कमी आ जाएगी और आवाम को वो सहूलत मुहैया होगी जो वो चाहते हैं। उसके अलावा जो अभी चूँकि मुझे और हाशिम साहब को अपनी ज़िम्मेदारी संभाले 65 घंटे हुए हैं, तो अभी मामलात को हम देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, लेकिन जो 3-4 चीज़ें वाज़ेह हैं जो कि एक मंतकी नतीजा है हमारी गुफ्तगू का, वो यही है कि जी तमाम हम डिस्कोस को ऑलरेडी जो उनके रेवेन्यू टारगेट्स हैं उनको हम वॉच कर रहे हैं। जहाँ हो सकेगा इंशाअल्लाह चोरी को रोकने के लिए जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे। तमाम डिस्कोस को ये हदायत भेज दी गई है कि वो एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर जो ट्रॉली के ऊपर रखे होते हैं वो उनकी जो मौजूदगी है उसे यकीनी बनाएं, ताकि इमरजेंसी में कहीं भी कोई क्राइसिस होता है उसको दें। और आने वाले दिनों में जो बहुत सारे हमारे तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में जो पेंडिंग इस वक्त कनेक्शंस हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि वो पूरे इंस्टॉल हो जाएं। सबसे जो हमारा मकसद है बतौर मुंतखब अवामी नुमाइंदे के ये है कि आवाम को भी ये एहसास हो कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनमें जो शिकायत का इजाला है उसको फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। ये इस वक्त का एजेंडा है। अब जो यकम से जो सिचुएशन में हम बेहतरी की तवक्को कर रहे हैं वो यही है कि जैसे जैसे सबसे पहले गैस अवेलेबल होगी जो हम गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेशन वो तवक्को है, फिर फर्नेस ऑयल अवेलेबल। अगर मेरी ये हमें ये मुमकिन होता कि फौरी तौर पर RLNG हासिल कर ली जाए, अगर ये मुमकिन होता कि फौरी तौर पर जो है फर्नेस ऑयल अवेलेबल हो और उसके लिए वसाइल भी मुहैया होते, तो आज मुल्क में ये लोड शेडिंग ना हो। लेकिन क्योंकि हमारे पास एक टाइम लैग है RLNG को हासिल करने में, वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने उस पर काम शुरू कर दिया, वो लोड्स ख़रीद रहे हैं। इस तरह फर्नेस ऑयल की जो फ्राहमी है, तो जैसे ही अगले आने वाले 15 दिनों में मुझे ये उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, तो फिर लोड शेडिंग में भी नुमायाँ कमी और बेहतरी आएगी। और फिर जो लार्जर एफिशिएंसी इश्यूज़ हैं, जो बहुत सारे आप में से यहाँ तजर्बाकार सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे की भी हम गाइडेंस लेंगे कि उन्होंने माजी में क्या देखा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आखिरी बात मुझे ये करनी हुई है कि हमारी कोशिश शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में जो ये एक वसीउल बुनियाद हुकूमत है, ये 70% पाकिस्तान के वोटरों की नुमाइंदा है। तो मैं तो ये बहुत अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि इस हुकूमत की वजह से आज मैं जिसका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है और मेरे साथ नोते ज़ई साहब जो चागी की पहाड़ियों से हैं, हम दोनों इकट्ठे बैठकर पाकिस्तान के मसाइल हल करने के बारे में कोशा हैं। पूरी तवानाई, पूरी मेहनत, पूरा जज्बा आवाम की खिदमत का वो लेकर हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह इस इशूज़ को रिजॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया। वन बाय वन जी, वन बाय वन जी 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 नहीं, वी हैव सम डिसिप्लिन जी, आप जिसको कहेंगे। हाँ जी जी। पहले तो सर आपको मुबारक हो। दूसरा ये बताइएगा, एक तो क्योंकि जब तक हमें सही फिगर नहीं मिलेंगे, चीज़ें ज़्यादा शुमार हमारे पास सही नहीं होगी, तो हम कोई भी चीज़ आगे आवाम को सही नहीं बता सकेंगे।
मिनिस्ट्री में हमारी सजेशन है कम से कम ऐसा सेल बना दिया जाए जो कम से कम सही अदाद शुमार दे दे हमें पावर की। दूसरा ये बताएं कि जून जुलाई में क्या समझते हैं कि कितनी लोड शेडिंग होगी, जीरो रेटिंग लोड शेडिंग कब तक आवाम तो करें कि बिल्कुल जीरो हो जाएगी लोड शेडिंग, और कितने पैसे आपको चाहिए पावर प्लांट सारे सिस्टम को चलाने के लिए? इसके साथ ही ले लें अपना दोनों का जवाब। जी जी अपना नजदीकी साहब, आपने जिस तरह आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक मतलब बड़ा वाज़ेह ऐलान किया कि 1 मई से जो है लोड शेडिंग जो है जीरो होगी। अभी आपकी बातों से तो ये अंदाजा लग रहा है कि जिस तरह आपने बताया कि टेक्निकल भी है कोई प्रॉब्लम, ईंधन का भी प्रॉब्लम है, और फिर 10 दिन इस चीज़ को मजीद भी लगेंगे, तो ये अभी 10 से 12 घंटे जो लोड शेडिंग हो रही है, आप कम से कम ये बता दें कि ये 10 से 12 घंटे से मतलब कम हो गए 4 घंटे 6 घंटे, ताकि कौन जो है वो आपको ये सुना जा रही है। जी। मैं अगर पहली बात तो ये कि हमने डेटा की फरहमी के लिए मैं इंस्ट्रक्शंस जारी कर दी हैं। दिन में एक दफ़ा भी इस पर फैसला हो जाएगा कि एक फ़िक्स टाइम पे हम जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है रिगार्डिंग जो जनरेशन है, डिमांड है, जो जिसको उसको हम बिजली अवेलेबल कर रहे हैं, वो हम दिन में एक दफ़ा आपको प्रॉपर डेटा रिलीज़ करेंगे ताकि हम। दूसरा जो इशू है जी कि प्राइम मिनिस्टर को जब ये ब्रीफिंग दी गई उसमें सिर्फ एक जो फ़र्क आया है और वो ये है कि रफली 2 से 3 हज़ार मेगावाट की इजाफी तलब पैदा हुई है सिस्टम में पिछले एक हफ्ते में, और उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। बाज़ इलाकों में बहुत गर्मी पड़ी है, तो प्राइम मिनिस्टर को जो एस्टिमेट्स दिए गए थे चंद दिन पहले वो 20,000 मेगावाट की डिमांड पर थे। अब हम तो चूंकि कोशिश ये है कि हम थोड़ा अपने आप को भी कुशन दें और ज़्यादा की मेहनत करें, तो हम तो 23,000 मेगावाट की डिमांड के ऊपर इस वक्त ऑपरेट करना चाहते हैं। वो हमारा नस्बुल-ऐन है कि वो हमें पूरा करना है। तो मैं ये आपने जो सवाल किया कि अब 10 से 12 घंटे इंशाल्लाह कम अज़ कम इसमें निस्फ हो जाएगी अगले 10 दिनों में। हमें एक्सपेक्टेशन है, जैसा मैंने कहा कि फौरी तौर पे पहले फर्नेस ऑयल ऑन होगा और ईद की छुट्टियों में हमें एडिशनल गैस भी अवेलेबल हो जाएगी, तो उसमें फौरी कमी आएगी। उसके बाद फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे RLNG के प्लांट्स वो उन्होंने लोड्स खरीद लिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने, वो जैसे ही हमें अवेलेबल होंगे तो पूरी कोशिश ये होगी कि ये बिजली की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। दूसरा ये भी है कि चलें जो गर्मी की वजह से कुछ जो हमें इजाफी तलब का सामना है, लेकिन यहाँ फिर अब अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि उस गर्मी की वजह से पानी ज़रा जल्दी पिघल जाए तो हमारी जो हाइडल जनरेशन है वो भी पिकअप होगी मई के महीने में इंशाल्लाह। जो एडिशनल रिसोर्सेज हैं जिसकी हमने डिमांड की है, हमने हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की है कि हमें 25 मई तक 108 अरब रुपए की हमारी तलब है, और फिर उसके बाद 7 जून तक हमारी जो डिमांड है वो 136 बिलियन की है, और फिर 15 जून को हम फिर चाहेंगे कि हमें 85 अरब रुपए हुकूमत की तरफ से मिलें प्रायोरिटी के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे सिर्फ जब आप बिजली के सेक्टर को देखते हैं तो सिर्फ बिजली बनाने का सेक्टर नहीं, उसमें बहुत सारे और इशूज़ हैं जिन्हें हमें रिजॉल्व करना है। तो ये भी हमारी तवक्को है कि जो इस वक्त एक मुत्तहिदा वसीउल बुनियाद काबीना मौजूद है, वो काबीना भी हम पर नज़र करम करेगी, और कोशिश यही है। मैं फिर कहूँगा ये बड़ी अच्छी बात है कि कल वजारत बिजली के जब डिस्कशन हो रही थी तो नोटिस ज़ई साहब की मौजूदगी की वजह से वहाँ फिर चागी की बात हुई, वहाँ आवारान की बात हुई। तो सिर्फ हम इस्लामाबाद तक बिजली नहीं पहुँचानी, हमने मुल्क के हर कोने कोने तक इंशाअल्लाह अपने पाकिस्तानी भाइयों और बहनों की खिदमत करनी है। इस पर हम इस वक्त अमल दरामद कर रहे हैं जनाब। अच्छा दस्तगीर साहब, ये बताइएगा कि ऐसी आखिर क्या वजह हुई कि हुकूमत आई और दो बिजली का देखने जो प्लांट पैदा हो जाता है आपकी हुकूमत आने के एक हफ्ता पहले तक जो है वो स्ट्रीमलाइन अचानक जो है ये भी आपने देखा कि क्या वजह हुई? क्या ये वजह वही है कि 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आई तो IPP